اے ولیوں کے ولی مولا تاغی، صاحب جود و کرم ہاشمی، آپ ہیں نور مجسم یا جواد، آپ سے ہم کو ملی ہے زندگی۔ آپ ہیں یا زکریا کا حشم، آپ کے کاندھوں پہ ہے حق کا علم، بچپنے میں علم یوں جاری ہوا، توڑ ڈالا جس میں باطل کا بھرم، کم سنین مالک خلق نبی، وارث حلم حسن روح علی، مثل مساوی سانپ نے سب مٹا ڈالی زحل کی تیرگی، آپ کی ہے کنیت ابن رضا، اور لقب باب المراد ہے آپ کا، خلق کی حاجت روائی کے لیے ہے کھلا در آپ کا صبح و مساء۔ بہت دلچسپ اور علمی گفتگو ہو رہی تھی کہ صرف نماز ہی اسے روک سکتی تھی جسے خدا نے فرض کیا ہے۔ اے عمران، اپنا سوال پورا کرو اور ابو الحسن سے دریافت کرو۔ بخدا، خدا کی قسم، اب تک ایسی محفل نہیں دیکھی جو اتنی عالمانہ اور مفسرانہ ہو۔ میرے مولا، مجھے مخلوقات خدا کی حد کے بارے میں کچھ بتائیے، اس کی کیفیت، اس کی تعریف، وہ کیا ہے اور کتنی طرح کی ہے؟ مخلوقات 6 قسم کی ہیں جو چھونے، وزن کرنے اور دیکھے جانے قابل ہوتی ہیں۔ جس میں وزن نہیں ہوتا وہ روح ہے، جو نہ دکھتی ہے اور نہ اس میں وزن ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ جو چھونے، چکھنے اور دکھنے کے قابل نہیں ہوتی، اس میں طول، عرض اور صورت بھی نہیں ہوتی۔ یہ وہ عمل و حرکات ہیں جو اشیاء کو بناتے ہیں اور ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، انہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل اور انہیں کم اور زیادہ کرتے ہیں۔ عمل و حرکت تو انجام پانے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، ان میں ثبات نہیں ہوتا کیونکہ ان کا وقت ان کی ضرورت سے بہت کم ہوتا ہے۔ جب متحرک شے سے متعلق عمل اور حرکت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی حرکت رک جاتی ہے لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ میرے مولا، خالق کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اگر وہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ ہے، تو کیا وہ اپنی مخلوق کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے؟ اللہ مخلوقات کے بدلنے سے نہیں بدلتا، بلکہ جو تبدیلی اس نے مخلوقات میں رکھی ہے وہ اس سے تبدیل ہوتی ہے۔ تو آپ نے اسے کس چیز سے پہچانا؟ اس کے غیر کے ذریعے۔ تو پھر بتائیں کہ وہ غیر کون ہے؟ اس کی مشیت، نام، صفت اور اس جیسی چیزیں، یہ سب اللہ کی مخلوق، حادث اور اس کی تدبیر کے دائرے میں ہے۔ میرے مولا، بتائیے وہ کیا ہے؟ نور ہے، ایسا نور جو زمین اور آسمان میں رہنے والوں کی ہدایت کرتا ہے۔ اب تمہیں اس سے زیادہ پوچھنے کا حق نہیں ہے مگر یہ کہ میں اس کی وحدانیت کو ثابت کروں۔ اللہ پہلا خالق اور پہلا وجود ہے، وہ ہمیشہ سے اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں، ایک ہے، کوئی اس کا دوسرا نہیں، نہ معلوم، نہ مجہول، نہ محکم، نہ مشابہ، نہ یادوں میں، نہ بھولا ہوا۔ وہ شے بھی نہیں ہے کہ اسے دوسری چیزوں کا نام دیا جائے۔ وہ ایسا نہیں کہ خاص وقت میں تھا یا معین وقت تک باقی رہے گا، یا کسی چیز کی وجہ سے اس کا وجود ہو، نہ کسی کے سہارے ہے اور نہ ہی پناہ میں۔ یہ سب خلقت سے پہلے ہے کیونکہ اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔
जो सिफात भी उसके लिए करार दोगे सब हादिस हैं और उन हकाइक को बयान करने वाली और उनकी तर्जुमान हैं जिनके जरिए से उसे पहचाना जाता है। कुर्बान जाऊं आप पर मौला, खुदा की कसम आप बुलंद हैं और ये सब आपके सामने पस्त। आप ऊपर उठेंगे और ये सब नीचे गिरेंगे। आप और आपके अजदाद पर दुरूद व सलाम। आप यकीनन इल्म का खजाना है। इमरान, जान लो कि मशीयत, इब्दा और इरादा एक ही हकीकत के मानी हैं जिनके 3 नाम हैं। इब्दा, इरादा और मशीयत से पहले हुरूफ थे जिन्हें हर चीज की असल, हर समझदार के लिए दलील और हर मुश्किल का हल करार दिया। अल्लाह ने पहले इब्दा को खल्क किया। उसमें वज़न, हरकत, सुनने की सलाहियत, रंग या एहसास कुछ नहीं था। दूसरी मखलूक हुरूफ है जिसमें कोई वज़न और रंग नहीं होता। ये सिर्फ सुनने और तौसीफ के काबिल है लेकिन ये नज़र नहीं आते। तीसरी मखलूक वो अशिया और हकाइक हैं जो महसूस की जाती है और दिखने, चखने और छूने के काबिल होती है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात गरामी इब्दा से पहले और उस पर मुक़द्दम थी क्योंकि उसकी ज़ात से पहले और उसके साथ कुछ भी नहीं था। इब्दा हुरूफ से पहले है और हुरूफ खुद के अलावा कोई मानी नहीं रखते। कैसे हुरूफ अपने अलावा कोई माने नहीं रखते अबुल हसन? क्योंकि अल्लाह ने उसमें कोई दूसरा मानी रखा ही नहीं है। मेरा एक और सवाल बचा है मेरे मौला। हाँ पूछो इमरान। खुदावंद हकीम के बारे में सवाल है। वो किस चीज में है? क्या वो एक चीज से किसी दूसरी चीज में तब्दील होता है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या उसे किसी चीज की जरूरत है? अल्लाह ने कोई चीज जरूरत की वजह से पैदा नहीं की है। वो हमेशा मौजूद था। वो ना किसी में है और ना किसी पर। ये मखलूकात हैं जो एक दूसरे को थामे रहती हैं, एक दूसरे में दाखिल होती और बाहर आती हैं। अल्लाह अपनी कुदरत से तमाम मखलूकात का मुहाफिज है। न किसी में दाखिल होता है और ना ही किसी से बाहर निकलता, और कोई चीज उसे कमजोर और नातवा नहीं कर सकती है और उसकी हिफाजत से रोक नहीं सकती। मखलूक में किसी को भी उसके काम और ताकत का अंदाजा नहीं है सिवाय खुदा के या जिसे उसने बाखबर किया हो, जैसे अंबिया जो उसके इल्म के खजानादार, उसके राजदार और उसकी शरीयत और कानून को नाफिज करने वाले होते हैं। अल्लाह के काम आंख झपकने या उससे भी कम वक्त में हो जाते हैं। जब किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है हो जा, तो वो चीज उसके इरादे और मशीयत से वजूद में आ जाती है। चीजें अल्लाह की निगाह में दूर या नजदीक नहीं होती। समझ गए इमरान? जी मैं बिल्कुल समझ गया। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह वैसा ही है जैसा आपने कहा, और मोहम्मद उसके बंदे हैं जो दीन हक की हिदायत के लिए आए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुजुर्गों और उलमा में से किसी और को सवाल या मुनाजरा करना है तो कीजिए। ए खलीफाए मुस्लिमीन, इमरान साबी के सवालात का अब तक कोई जवाब नहीं दे सका है सिवाय आपके चचाजाद अबुल हसन के। इस नाकाबिले शिकस्त आलिम के शिकस्त ने हम सबको हैरान कर दिया है। अब इमरान साबी की गवाही के बाद हमारी शहादत की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब ये तस्लीम करते हैं। तो इस बिना पर सारे दावे बातिल हो गए और हक आश्कार हो गया। अल्लाह आप सबको महफूज रखे। इब्न अक्सम कुछ तो कहो। जान की अमान है मेरे आका। अमान है। उन्हें वली अहद बनाकर बड़ी गलती की है। मुझे नहीं लगता इस वक्त वो इल्म, तक़वा, करामत और शुजात और गैब का इल्म रखने में उनसे ऊपर कोई और होगा। जरा गौर कीजिए जनाब।
जाग जाइए इससे खलीफा मुस्लिमीन। तुम लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है और इत्तला देनी है। हमें कोई मसला नहीं है, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। यहाँ आओ उम्मे फजल। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक बहुत अहम फैसला किया है जिससे तुम सब बाखबर होगे। जब से अली इब्ने मूसा को वली अहद बनाया है, तभी से उनके बेटे मोहम्मद को उम्मे फजल के लिए चुना है मैंने। जी हाँ, हम जानते हैं खलीफा मुस्लिमीन। उन्हें मदीने से बुलाया है और दारुल खिलाफा में रोका है। उम्मे फजल का उनसे निकाह होगा। तुम्हारी क्या राय है? जो आपका फैसला हो, लेकिन बनी अब्बास क्या करेंगे? उन्हें मुझ पर छोड़ दो, मैं उनकी रग रग से अच्छी तरह वाकिफ हूं। उन्हें डर है कि हुकूमत कहीं हाथ से ना निकल जाए। मेरे बेटे, उनसे मुकाबले के लिए तदबीर करूंगा। जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो तुम्हारी ऐसी शादी करूंगा कि सब लोग याद रखेंगे। खलीफा मुस्लिमीन को यह फैसला मुबारक हो। अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खानदान में रिश्ता हमारे लिए फख्र की बात है। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या अच्छी बात हो सकती है। बिल्कुल। मेरे महल में अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का नाम दुरूद के साथ लिया जाए और मेरे सामने उनका नाम एहतराम से लिया जाए। बेटा अब्बास, सिर्फ ऐशो आराम और शिकार ही में लगे रहोगे? कभी दरबार भी आ जाया करो। लोग तुमसे आशना हो और तुम लोगों से आशना हो, ये जरूरी है। चक्कर लगा लिया करो। हुक्म की तामील होगी बाबा। किसी चीज की जरूरत है? आज रात आप हमारे पास क्यों नहीं रुक जाते? ऐ काश खिलाफत और हुकूमत से वक्त मिल पाता मुझे। आपके घर आने से यहाँ घर वाले सब खुश हो जाते हैं। जानता हूं मैं अब्बास, जानता हूं। बहुत अच्छी तरबियत की है। खुश रहिए। खुदा आपकी हिफाजत करे। आओ उम्मे जाफर, हमारा पूरा खानदान नाराज है, कोई तदबीर करो खुदा के लिए। मैं भी तुम्हारी तरह इस खानदान की एक फर्द हूँ। जो भी रास्ता अपनाएंगे वो, चाहे वो रास्ता सही हो या गलत, उसी पर जाऊंगी। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाई। क्या तुम भी इस फैसले में शामिल हो उम्मे जाफर? मैं कैसे उसके फैसले में मुदाखलत कर सकती हूँ, क्योंकि वो सोचता है कि ये रिश्ता उसकी बेटी की शान के मुताबिक है। तो फिर इस सूरत हाल में आखिर मैं क्या कर सकती हूँ? मगर ये रिश्ता उम्मे फजल की शान के मुताबिक नहीं है। हाँ, सुभान अल्लाह। मैं इस फैसले की मजम्मत करती हूँ उम्मे जाफर। कल तक तुम मुझसे मराजिल का बेटा कहती थी और मामून की भी कोई हैसियत नहीं थी, और आज जब वही मराजिल का बेटा अपनी बेटी का निकाह फर्जंदे अली इब्ने अबी तालिब से कर रहा है तो तुम्हें इस निकाह से एतराज है। कल तक तो तुम्हें इस मराजिल के बेटे से बहुत ज्यादा इख्तिलाफात थे, तो अब ऐसा क्या हो गया है? मैंने सुना था कि तुम उनकी तरफदार हो, लेकिन यकीन नहीं था ज़ुबैदा। लेकिन आज यकीन हो गया मुझे। ये क्या कह रही हो तुम बिन्ते सुलेमान? कम बोला करो। कसम खुदा की ज़मीन पर तमाम इंसानियत के लिए शर्फ और फजीलत है, और हज़रत अली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर के ख़ानदान से निस्बत की फजीलत और फ़ख्र का इस दुनिया में किसी से कोई मुकाबला नहीं। बस आप सबकी तरफ से मैं बात करूंगा। जैसा बेहतर समझो। जनाबे वाला, बनी अब्बास के बुजुर्ग, तशरीफ लाइए। सलाम हो खलीफा मुस्लिमीन पर।
आप बुजुर्गों पर भी सलाम हो। खुशामदीद, तशरीफ रखिए। आपके चेहरों से लग रहा है आप परेशान हैं और दिल में कोई ऐसी बात जरूर है जो आप लोग मुझसे कहना चाहते हैं। जी कहिए चचा जान। खलीफा, आपको खुदा का वास्ता देते हैं, आपने जो फैसला किया है उसे वापस ले लीजिए और इब्न रिजा को अपना दामाद मत बनाइए, क्योंकि हमें यह डर है कि अल्लाह ने जो हमें हुकूमत अता की है वो हाथ से ना चली जाए, और जो इज्जत हमें मिली है हमारा खुदा कहीं हमसे वापस ना ले ले। हुकूमत तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की रही है। खलीफा मुस्लिमीन, आप तो जानते हैं कि माजी से अब तक हमारे और उनके खानदान के दरमियान क्या कुछ नहीं हो चुका है। बात आगे बढ़ाइए चचा जान। हमारे बुजुर्ग हमेशा हमें उनसे दूर रखा करते थे। अब आप खुदारा हम सबको अली इब्न मूसा अल रिजा की वली अहदी से दिए जाने वाले गम को ना दोहराइए और मोहम्मद इब्न अली के साथ रिश्ते का फैसला वापस ले लीजिए। अपने खानदान से किसी मुनासिब शख्स को चुनिए जो उनसे बेहतर हो आपके हुक्म और खानदान के सामने, और आपका फर्माबरदार भी। ऐ खादिम, मशरूब पेश करो शहद के साथ। ये ठंडा और मीठा मशरूब पीते हुए मेरी बात सुनिए। आप तमाम लोग और आले अबू तालिब के दरमियान जो हुआ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। अगर इंसाफ से काम लेते तो जाहिर हो जाता वो लोग आपसे ज्यादा मुस्तहिक हैं, और जो कुछ भी मुझसे पहले वालों ने किया था वो कताए रहम था। और इस बारे में मैं खुदा से बहुत डरता हूं। कसम खुदा की कसम, मैं खिलाफत उन्हें देना चाहता था लेकिन उन्होंने खुद कबूल नहीं किया। खुदा का हुक्म उन्हें ज्यादा अजीज है। और अबू जाफर मोहम्मद इब्न अली को इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने कमसिनी के बावजूद उलमा को मगलूब कर दिया, और उनकी खुसूसियत इससे ज्यादा क्या होगी। यही वजह है बस। ए खलीफा मुस्लिमीन, ये जवान आपको चाहे जितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन इल्म और हिकमत के लिहाज से अभी कम सिन है वो। उसे अभी थोड़ा इल्म और अदब हासिल करने दीजिए, फिर आपका जो दिल चाहे वो आप कीजिएगा। बस चुप कर जाएं। मैं उस आलिम जवान को आपसे ज्यादा जानता हूं, क्योंकि वो अहले बैत और आले नबी का एक फर्द है। उसका इल्म और इल्हाम खुदाई है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उन्हें आजमा लीजिए, अगर मैं गलत हुआ तो फिर मुझसे कहिएगा। खलीफा, आपने सही फरमाया है, उन्हें जरूर आजमा लेना चाहिए। अगर हमारे सवालों का जवाब मिल जाए तो हमें किसी भी किस्म का कोई एतराज नहीं होगा खलीफा। वैसे भी आपकी तदबीर खवास और अवाम सबके लिए आश्कार है। आपको इख्तियार है, जब चाहें। यहाँ आओ मेरी जान, यहाँ आओ। ऐ मेरी आंखों की ठंडक। आपको बहुत प्यारी है ना ये? शहजादी है बनी अब्बास की, खलीफतुल मुस्लिमीन की बेटी, जो सारे बादशाहों के बादशाह हैं। हाय तुम्हारी बदकिस्मती, हाय तुम्हारी बदकिस्मती उम्मे फज़ल। चलो अपने भाई के पास जाओ उम्मे फज़ल। फुप्पी जान, आप उम्मे फज़ल से क्या चाहती हैं? पहले ये तो बताओ मुझे, उम्मे फज़ल को दूर क्यों कर दिया तुमने मुझसे? इसलिए कि खलीफा मुस्लिमीन नाराज ना हो और फितना ना फैले। फितना? कैसा फितना? किस फितने की बात कर रही हो तुम? क्या आपको खलीफा मुस्लिमीन की हुदूद की खबर नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता। खलीफा मुस्लिमीन की हुदूद में 3 चीजें शामिल हैं और इन तीनों की अहमियत एक जैसी है। पहला राज फाश करना, दूसरा बुरी बातें फैलाना और उनके घर की बेहुरमती करना।
क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसा काम कर सकती हूँ जिससे खलीफा ने मना किया है? तुमने ये गुमान भी कैसे किया उम्मे अब्बास? फुप्पी जान, खुदा का वास्ता है आपको, इब्न रज़ा खलीफा मुस्लिमीन की बेटी के रिश्ते के सिलसिले में कोई मुदाखलत ना करें। खुदा ही तुम लोगों पे रहम करे। जरा गौर से सुनो इब्ने अबी दाऊद। खलीफा मुस्लिमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि हर जगह से 20 आलिम, अदीब, फ़क़ीह और माहिरीन का इंतखाब करूं जो उनसे गुफ्तगू करें, क्योंकि उन्हें इल्मी गुफ्तगू करना और दूसरों के नजरिया को जानना, उन्हें परखना बहुत पसंद। लेकिन खलीफा मुस्लिमीन तो खुद आलिम और दाना शख्स हैं। मैंने तो सुना है कि उन्हें तमजीद और तारीफ पसंद नहीं है। क्या कह रहे हो? कभी सुना है कि किसी बादशाह को तारीफ और खुशामद पसंद ना हो? उनकी जितनी तारीफ कर सकते हो करो, उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। ख्याल रहे कि मामून चालाक और होशियार है, उसे चापलूसी और फालतू बात पसंद नहीं, और तारीफ और चापलूसी के फर्क को खूब समझता है। जैसा कि उससे कहना उसकी सखावत, जूद व बख्शिश और बड़े दिल की खूब तारीफ किया करो। और यह भी कह सकते हो तुम उनसे, मेरे आका आपने तो हातम ताई को पीछे छोड़ दिया है। फिक़ा में भी उसकी अपनी राय है, उसकी तायीद करते रहना। इन बातों पर जोर देना जिनमें तुम्हारी और उसकी राय एक हो। उसके बाद जैसे चाहे तारीफ करते रहना। कोई वाज़ेह मिसाल दीजिए। मामून का कहना है कि अली इब्ने अबी तालिब सबसे अफजल हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और उसके पास वाज़ेह दलाइल हैं जो वो खुलकर और बगैर किसी खौफ के बयान करता है। लेकिन मुझे उनकी राय और दलील कबूल नहीं। वो तो उनकी अपनी मंतिक और दलील है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मेरा अकीदा तो शियों के खिलाफ है। मैं मुतज़िला हूँ, शिया तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी दलीलें उनके मुखालिफ हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मुर्तज़ा अली को सबसे बड़ा आलिम व आकिल मानते हो। मेरी बात याद रखो, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता इब्ने अक़सम कि अहले सुन्नत की फ़िक़ा को मानते हो और मामून के काजी होने की वजह से शियों जैसा रुझान रखते हो। बताओ ये कैसे कर लेते हो? लेकिन खलीफा ने चूंकि हम मुताज़िलियों को भी मौका दिया है, इसलिए हमारे महबूब हैं। वक्त पर जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे बहुत से काम है। कहो, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूं इब्ने अक़सम। बहुत खूब। अब जबकि शिया इस जवान के गिरोह हैं, तो फिर उनसे ऐसे सवाल क्यों नहीं करते कि जिनके वो सही जवाब ना दे सकें और शियों की हैबत घट जाए। इससे बेहतर क्या होगा? इसके बारे में मैं जरूर सोचूंगा इब्ने अक़सम। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आलिम बुजुर्ग। क्या तुमने वो खास सवालात तैयार कर लिए हैं? इब्ने अक़सम, मैं बहुत ही हैरान और परेशान हूँ। कैसी हैरानी? क्या कहना चाहते हो तुम? तुमने कहा कि खलीफा की मर्जी की बात करूं। हाँ, ऐसा ही है। फिर तुमने कहा कि भरी महफिल में ऐसा सवाल करूं कि शिया रुस्वा और मगलूब हो जाएं। तुम्हारे दिमाग में क्या है? क्योंकि तुम जानते हो कि हम मुतज़िला सारे ग्रोह खलीफा मामून के एहसानमंद और शुक्रगुजार हैं, और मामून का जमाना हमारे लिए सुनहरा दौर है। हम हर जगह मिंबर और मस्जिद से अपनी बात कह रहे हैं, और उस खुदा का शुक्र करना चाहिए हमें। हर तरफ हमारे हामी हैं और हमारी इज्जत है। ऐसे में आप चाहते हैं कि खलीफा के सामने ऐसी बात करूं जिससे वो नाराज हो जाएं। मैं इस बात से हैरान हूं। सुनो इब्ने अबी दाऊद, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैंने बनी अब्बास से खूब माल लिया है। कुछ ऐसा करो इब्ने अबी दाऊद
कि वो अलवी जवाब ना दे सकें और उसके बदले में तुम्हें भी एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। और अगर उसे मगलूब ना कर सके तो क्या होगा? मुतमईन रहो, तुम्हें तुम्हारा माल हर हाल में मिलेगा, मामून से ही मिलेगा। अगर उसकी मर्जी के मुताबिक अमल हुआ, हार हमारी नहीं होगी, खलीफा हर सूरत में फतह होगा। काजी, जैसा आपका हुक्म जनाब। मुझे इस बात का डर है जनाब, इब्ने अब्बास उसकी बैत तोड़कर इब्ने मेहदी की बैत कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो अपना फैसला बदलेगा। मुझे पता है आप आले अली से मोहब्बत करते हैं, फिर भी वहां हमें चलना चाहिए। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। वो आपका बहुत एहतराम करता है। मैं वहां आऊंगा और तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं। खलीफा से कहना कल मैं वक्त पर हाजिर हो जाऊंगा। जरूर मौला, मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। मेरे मौला, क्या मेरे लिए कोई और हुक्म है तो बताइए। खलीफा का हुक्म है कि बगैर किसी टाल मटोल के आपकी हर ज़रूरत को पूरा किया जाए, ताकि आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मैं हाजिर हूँ। नहीं यासिर, कुछ नहीं चाहिए। फिर मुझे इजाज़त दीजिए मौला। तुम्हारे चचा और उनके बच्चे आ गए अब्बास? उनके पास क्यों नहीं जाते आप? उन्हें इंतजार करने दो, मैं उन्हें ठीक करना जानता हूं। वो काफी नाराज हो सकते हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। उन्हें जितने भी इनामात मिल रहे हैं, उनके माल में से मैं कुछ नहीं लेता। खूब गुलाम व कनीज भी खरीदते हैं और इसके अलावा गाना बजाना भी करते हैं। लेकिन इसके बाद भी उन्हें मेरी मौत का इंतजार रहता है, ताकि हुकूमत उनमें से किसी को मिल जाए। लेकिन अगर उन्हें पता होता तो तवील उम्र की दुआ करते, क्योंकि बनी अब्बास में से कोई भी मुझसे ज्यादा काबिल नहीं है। लेकिन लालच ने अंधा कर दिया उन्हें, और वो मेरी सियासत और तदबीर को नहीं समझते। उनमें से हुकूमत के लिए मुनासिब कौन है? हाय अफसोस, अगर तुम जरा सी मेहनत करते तो तुम्हारा नाम पेश करता मैं। अभी भी आप कहते हैं कि अब्बास अभी बच्चा है। लेकिन बातों की नहीं, हुकूमत की सोचो। अभी के बारे में कह रहे हैं? सुहेल इब्ने ईसा अगर अबू इसाक को माजूल नहीं करता तो इसका मतलब हुकूमत चाहता है। चचा मोहम्मद इब्ने मामून के बारे में कहते थे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो कैसे खलीफा हो सकते थे? वो बहादुर, निडर और गुस्से वाला था, किसी को भी कत्ल कर सकता था, और खूनरेजी की परवाह ना करना हुकूमत की अहम शर्त है। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं बाबा। तुम्हारे बाप जैसा कोई नहीं। मेरे साथ आओ। परवरदिगारा, मेरे हालात और बेहतर फरमा और मुश्किलात से निकलने में आसानियां फराहम फरमा। अपनी राफत व मेहरबानी से मुझे राह रास्त अता फरमा। अपनी कुदरत से मुझे बुराई से दूर रख और अपने लुत्फ़ व करम से मुझे मुश्किलात की क़ैद से निजात दे। मुझ पर निगाहे करम कर, अपने फजल से मुझे बख्श दे और रास्ता खोल दे। मेरे गिरिए पर रहम कर और मेरी दुआओं को पर्दे और हिजाब में ना रख, और मेरे वजूद को कबूलियत व बख्शिश से उस्तुआर फरमा। मेरी जिंदगी की इस्लाह फरमा और उम्र को तुरानी फरमा। रोज़े महशर मुझ पे रहम करना, बेशक तू बख्शने वाला अजीम और मेहरबान है। खुदा का दुरूद हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर।
खलीफा मुस्लिमीन मामून रशीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तशरीफ रखिए। खुशामदीद, खुशामदीद ऐ फर्जंद रसूल खुदा। खुदा का सलाम और रहमत हो तुम पर। खुदा का सलाम और रहमत हो आप पर। तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। देखा तुमने? हाँ। देखना जल्द मामून को गुस्सा आ जाएगा। तुम्हें कैसे पता उसे गुस्सा आएगा? खलीफा मुस्लिमीन के सामने इसके रुस्वा होने का वक्त आ चुका है। खलीफा मामून ने मुझसे कहा था, तुम लोग मली रिजा के बेटे को शिकस्त नहीं दे सकते। वो हमसे रिश्ते की वजह से यहां आने को तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि हम रुस्वा नहीं होंगे। इसी बारे में सोचे जा रहा हूं मैं। खलीफा मुस्लिमीन, क्या मुझे इजाजत है कि मैं अबू जाफर से सवाल कर सकूं? सिर्फ एक। बिल्कुल इजाजत है। मेरी जान आप पर कुर्बान अबू जाफर, क्या हमें सवाल की इजाजत है? पूछिए जो पूछना है। एक शख्स जिसने हालत एहराम में शिकार किया है, उसके लिए क्या हुक्म है? शिकार हरम में किया या हरम से बाहर किया, शिकार की हुर्मत के बारे में जानता था या नहीं, जानबूझकर किया या भूले से, आजाद था या गुलाम, छोटा था या बड़ा, पहली बार शिकार किया था या कई बार कर चुका था, शिकार परिंदा था या कुछ और छोटा जानवर था या बड़ा, अपने काम पर शर्मिंदा था या बजिद, रात में किया था या दिन में, एहराम उम्रे का था या हज का। माफ कीजिए, मेरा इतना इल्म नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। इस नेमत पर खुदा का शुक्र है। अब मेरी बात पर यकीन आया जो लोग आपको मान नहीं रहे थे। अबू जाफर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई फ़कीह ऐसे जवाब दे सकता है जैसा आपने दिया है, या कोई सवाल करने वाले को ऐसे चुप करा सकता है। अल्लाह आपको महफूज रखे। खुतबा आप ही पढ़ेंगे? हाँ ए खलीफा। बेहतर है। आपको अपना दामाद बनाता हूं और अपनी बेटी उम्मे फजल का निकाह आपसे करता हूं। हम्दो सना है खुदावंद मुताल के लिए, उसकी तमाम नेमतों का इकरार करते हुए, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और यही उसकी खालिस तौहीद है। और दुरूद व सलाम खुदा के बेहतरीन बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तैयब व ताहिर आल पर। अम्मा बाद, और ये दुनिया के लोगों पर खुदा का फजल और करम है कि उसने उनके अक़्द को हलाल बनाकर उन्हें हराम से आज़ाद कर दिया। और खुदावंद सुभान फरमाता है, और तुम में जिनका निकाह ना हुआ हो और तुम्हारे गुलामों और कनीज़ों में जो साले हों उनका निकाह करो। अगर वो नादार हों तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा, और अल्लाह बड़ी वुसअत और इल्म वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अब मोहम्मद इब्ने अली बिन मूसा उम्मे फजल बिनते मामून से 500 दिरहम महर पर, जो रकम हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के महर के बराबर है, अक़्द का खासगार है। और ये पूछता है कि क्या इस महर पर खलीफा मामून अपनी बेटी को अबू जाफर के अक़्द में देते हैं? हाँ, महर मुअय्यन पर उम्मे फजल को आपके अक़्द में देता हूं। आपको कबूल है? मुझे कबूल है और मैं राजी हूं। आपको बहुत मुबारक हो। ये शादी मुबारक करार पाए इंशाअल्लाह। बाहक के खुदा मुबारक हो। अली इब्ने अबी तालिब के पोते से खुदा राजी रहे।
और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये जश्न और शादी सबको मुबारक हो, तमाम हाजरीन को, अहले बगदाद और सभी मुसलमानों को इंशाअल्लाह। छोटा मुंह बड़ी बात मेरे आका, आपका घर बरकतों से भर गया। आपको और आपके दामाद को और हम सब मुसलमानों को ये शादी मुबारक हो। खुदा की हम्द बजा लाता हूँ, अल्लाह मुबारक करे। अल्लाह का सलाम और बरकत हो आप पर। अबू जाफर, आपसे ये रिश्ता मेरी खुश नसीबी है। अल्लाह मुझे उम्र दे ताकि अपनी बेटी उम्मे फजल के बच्चों को देख सकूं। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। यही चाहते थे ईसा। उनके और उनके जद के लिए तुम्हारा कीना काफी नहीं था? अफसोस हुआ तुम पे। उन्हें उनके जद रसूल अल्लाह से इल्म अता हुआ है, जिन्हें खुदा ने इल्म से नवाजा था। हालत एहराम में शिकार का जो सवाल था उसका जवाब तफसील से इनायत फरमाइए ताकि हम भी सीख सकें और फैज उठा सकें। ठीक है। अगर कोई एहराम में हरम के बाहर बड़े परिंदे का शिकार करे तो एक मेमने की कुर्बानी दे। अगर हरम में शिकार करे तो कफारा दुगना होगा। अगर चूजे को हरम के बाहर शिकार करे तो कफारा एक मेमना होगा जो दूध ना पीता हो। शिकार हरम में हो तो कफारा मेमना और चूजे की कीमत दोनों देनी होंगी। अगर शिकार जंगली जानवर जैसे खच्चर का हो तो कफारा एक गाय होगा, और अगर शुतुरमुर्ग का शिकार हो तो कफारा एक ऊंट है, और अगर हिरन का शिकार हो तो कफारा एक भेड़ होगा। और अगर इनमें से किसी का भी हरम में शिकार किया जाए तो उसका कफारा दुगना हो जाता है और उसे खाने काबा ले जाकर कुर्बानी की जाए। अगर हज में किया है तो कफारा मिना में कुर्बानी होगी, जहां लोग कुर्बानी करते हैं। अगर उम्रे में हो तो कुर्बानी मक्का में करे। शिकार का कफारा जाहिल और आलिम दोनों पर बराबर है। जानबूझकर करने पर गुनाह भी है और कफारा उस गलती के लिए है। आज़ाद का कफारा उसी के ज़िम्मे है और ग़ुलाम का कफारा उसके मालिक के ज़िम्मे। छोटे बच्चे पर कफारा नहीं है, लेकिन उसके वली पर वाजिब है। गुनाह पर शर्मिंदा शख्स से अज़ाब आखिरत उठा लिया जाएगा, लेकिन आमदन गुनाह करने वाले को अज़ाब का मुंतज़िर रहना चाहिए। अल्लाह आप सबको हराम अंजाम देने से महफूज रखे। बहुत खूब अबू जाफर, आसंत, दुरूद हो आप पर। हाजरीन, ये खबर दूसरों तक पहुंचा दीजिए। इस खानदान को खुदा ने खास चीजें इनायत की हैं। कम सिनी इनके कमाल में कोई माने नहीं होती। सही फरमाया खलीफा मुस्लिमीन। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत अली इब्न अबी तालिब के जरिए शुरू की थी, जिनकी उम्र 10 साल थी, जो एक कम सिनी की उम्र थी। पैगंबर ने उनका इस्लाम लाना कबूल कर लिया था, लेकिन किसी दूसरे का इस्लाम कबूल नहीं किया था। यह बात थी। इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र 6 साल से कम थी, उनकी बैत की और दूसरे बच्चे की बैत नहीं की। और आप लोग इस खानदान की अजमत से आगाह हैं। इनके अव्वल से आखिर तक सब पाक हैं। अब क्या कहते हो? ए ईसा, तुम उसके दुश्मन हो जिससे दुश्मनी मोल नहीं ली जा सकती। पीछे ना हटे तो फंस जाओगे तुम। मामून को रहने दो। उससे हमसे ज्यादा हुकूमत की लालच है। वो अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे हुकूमत करता है। हम उससे आगे कभी नहीं निकल सकते। मुझे पूरा यकीन था
जैसा होना था वैसा ही हुआ। तशरीफ लाइए। हाँ, ये तो बताइए, शादी के तोहफे आपको मिल गए? हाँ, उनको बहुत मुबारक हो। तुम्हें उन्होंने इतना दिया कि तुम राजी हो गई। इंसान तो है ही मोहब्बत और तोहफे का भूखा। हाँ, बैठिए। कनीज जल्दी से शहद और संतरे लेके आओ।